बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। आज आपकी आवाज़ में हम जिसकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं उसमें इंसानियत भी शर्मा गई। हैवान की बात करें, शैतान की बात करें तो सब मायूस हैं, सब शर्मिंदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफ का रुतबा दिया है, अशरफ का रुतबा दिया है। लेकिन आप अपने आप से पूछें, क्या आप वाकई में इस काबिल हैं? क्या आप वाकई में अशरफ कहलाने के काबिल हैं? नहीं। आज जहां मैं मौजूद हूं वहां पर एक बेटी के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, आप कह लें एक खातून के साथ एक ऐसा सलूक किया गया कि वहां पर आसपास कुछ इंसान मौजूद थे। अगर मेरा दिल कहता है कि वहाँ कोई जानवर होता तो शायद उस खातून को बचा लेता। तो आज हम इस कदर हम मायूस हैं और हम अशरफ कहलाने के तो हरगिज़ लायक नहीं हैं। अल्लाह ने बेटी को रहमत का दर्जा दिया है, लेकिन यहाँ पर उसे ज़हमत समझा जाता है। हम जी मौजूद हैं आज गुजरांवाला से आगे एक गाँव में। यहाँ पर एक सानिया पेश आया है और हम खातून के घर मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और जानते हैं कि आया क्या हुआ था और अब वो क्या सोचते हैं और आगे मुस्तकबिल क्या देखते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, शुमाइला के वालिदैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क़यामत इन पर कब और कैसे टूटी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, किन जो है सारा कुछ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਾਜੇ, ਇਹਦੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ। शुमाइला शादीशुदा सी? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਾਜੇ। किन्ने साल पहले पहली शादी हुई सी? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੇ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। दूसरी शादी पसंद ही की सी? ਹਾਂਜੀ, ਪਸੰਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਾਸੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾੜਾ, ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਾਂ, ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਣ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਾਓ। ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਰੀ ਜੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਬੈਕਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ। ਉਹਦੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਡੀਗਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸਾਜੇ, ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਸਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਸਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਆ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਣਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੇ अल्लाह ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी बार शुमाइला घर आई और उसने बताया कि मुझे मेरा शोहर मारता है और उसकी जो पहली बीवी है वो भी बदसलूकी करती है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੱਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਸੱਸ? ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। आईजी साहब, देख लीजिए,
आप तो मॉडल पुलिस बनाने की बातें करते हैं, आप कहते हैं कि जी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी हैं, पॉलिसी में बेटरमेंट नज़र आ रही है, लेकिन एट द एंड हमें हर जगह से ये सुनने को मिलता है कि जी इंसाफ नहीं मिल रहा। थानों में जी पुलिस इस कदर अजीब रवैया इख्तियार करती है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, इवन कि अगर रिपोर्ट दर्ज भी हो जाए तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। ये आपके सामने एक केस है कि इनकी बेटी को किस तरह से जिंदा जला दिया गया और पुलिस की जानिब से कोई ताउन नहीं है। क्या पुलिस इतनी कमज़ोर है? क्या पुलिस के पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है? क्या वो किस तरह की पॉलिसी है उनकी? क्यों अब तक वो लोग खुलेआम बाहर फिर रहे हैं? क्यों नहीं उनको अभी तक पकड़ा गया? इनके शुमाइला के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल जी, तुसी मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ शुमाइला ने दूजा ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਿਆਲਾ ਮੈਂ ਕਵਾਈ ਆਂਦੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਵੀ ਕੁਆ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਰ? ਜੀ ਉਥੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਵੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾਮਾਬਾਦ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ शुमाइला ਕਿਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਇਧਰ? ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਘਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਰ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਜੜ ਗਈ, ਲੂ ਤੂੰ ਤੇ ਵਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। किसको, आपको क्या लगता है इसमें कि कौन कौन मिला हुआ है? सास, पहली बीवी? हाँ, इसकी शौहर? पहली बीवी, शोहर, इसकी नंद सब जले हुए नाल सारे जी सन इन्हां दे। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਜੀ ਸਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਰਾਤ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? लेकिन ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। नाज़रीन, हम जिस माशरे का हिस्सा है उसमें ये क्राइम हम देखते हैं कि क्राइम की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आखिर क्यों ये बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि आपका जो निज़ाम है वो कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम एक शख्स ने एक ज़िंदा इंसान को जला दिया भाई, और उस पर कोई एक्शन ही नहीं है। हमारी पुलिस खामोश है, हमारा कानून खामोश है। बकौल माँ जी के जी उनको पकड़ा जाता है, रिश्वत देते हैं, बाहर आ जाते हैं, खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं और बाहर फिर रहे हैं आराम से। कोई उनके ऊपर कानून ही नहीं है, डर ही कोई नहीं है, खौफ ही कोई नहीं है। कभी किसी को जिसका दिल चाहता है कोई किसी को गोली मार देता है, किसी का कत्ल कर देता है। जिना के केसेस आप लोग देख लें। अब यहाँ पर एक जिंदा शख्स को जला दिया, मतलब एक लड़की जो कि अपने घर बार छोड़कर किसी के घर जाती है, वहाँ को किसी और के घर को अपना घर समझती है, उसको आपने जला दिया। आपका कानून ही इस काबिल नहीं रहा कि आप कंट्रोल कर सकें। तो जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे इन चीज़ों को, तब तक हमारे माशरे में से ये कॉन्सेप्ट नहीं ख़त्म हो सकता। ये डर नहीं बैठ सकता कि जी हम किसी के साथ ऐसे करेंगे तो उसके बदले में ये एक्शन हो सकता है। जी, इस वक्त हम शुमाइला के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनके कई रिश्तेदार हैं, हमसाए भी हैं। उनसे जानते हैं कि शुमाइला कैसी थी, कैसा मिजाज था और किस किस को शुमाइला आकर अपनी ये आपबीती बताती थी कि मैं इतना परेशान हूँ और इतना तंग हूँ, लेकिन हमारे घर के हालात इस काबिल नहीं है कि मैं फिर से अपने माँ बाप के पास आ जाऊँ और उनको बताऊँ कि जी आपने ही अब मेरे साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम जी। की रिश्ता सी तुहाडा शुमाइला? भतीजी से मेरी। फुप्पो हो यानी तुसी? हाँ जी। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੰਜ ਇੰਜ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? हाँ जी। ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? बस यही कर दे। ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਦੱਸੋ। मसलन कर दे, अच्छा नहीं सलूक कर दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ बीवी भी मार दी पहली या बंदा ही कुटदा सी? ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ फिर ਮਾਰਦੇ भी ਸਨ। उधर क्यों रहंदी सी? ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਹਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। हमारी जी मशरकी ख़वातीन जो कि अपने घर बसाने के चक्कर में एक दिन खुद जल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या रिश्ता है आपका शमाइला से? फुफ्फो मैं ਉਹਦੀ आप भी फुप्पो हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਆ ਕੇ? ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਮਾइला ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, अपने घर अच्छा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कि हम साए हैं, हमें इंसाफ चाहिए और हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये सब जी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾइला ਨਾਲ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਆ। ਚਾਚੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਆਈ ਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਚੀ ਜੀ ਇੰਜਨ ਮਸਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਾੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਇਹਨੇ ਛਡਾਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं आपको दिखाती चलूँ यहाँ पर कि शमाइला के घर की कंडीशन, कि ये एक छोटा सा सहन है, ये आप देख सकते हैं कि एक वॉशरूम है और कोई पक्का मकान नहीं है। पीछे उन्होंने आरजी से अपना किचन बनाया हुआ है। ये छोटी सी फैमिली जिनके घर के हालात ही मुझे, बस मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ बेहतर नहीं लग रहे। ये लोग अपनी बेटी का इलाज कैसा करवाएंगे? अगर हम बात करें बर्न पर्सनस की या फिर इस डिसीज़ के हवाले से या इस प्रॉब्लम के हवाले से, तो ये एक एक्सपेंसिव, अगर आप ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसमें आता है। ये आम से मारे से लोग उसका इलाज कैसे करवाएंगे? और खुदा न खास्ता अगर ये किसी बड़े इम्तिहान में पड़ जाते हैं तो उन 5 बच्चियों की कफ़ालत कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है गुड़िया का? रबिया। रबिया, पढ़ते हो? जी। किस क्लास में? जामिया में। जामिया में, ज़बरदस्त। अच्छा, आप मम्मा के साथ रहते थे या नानों के पास रहते थे? मम्मा के पास। मम्मा के पास। नीचे आ जाओ। मामा के पास रहते थे, तो जो पापा थे आपके, वो क्या सलूक करते थे मामा के साथ? मम्मा के साथ पूरा सलूक करते थे। कौन कौन? मम्मा और मामा की सासू और जो मेरे पापा की पहली बेगम थी। वो क्या करती थी? मारती रहती थी या लड़ती थी बस? मामा को जो मारती भी थी, मामा की जो सास, और जो मामा का जो चाचू का बहन है ना, उसके खावन में भी मामा को मारा था। अच्छा, मतलब कि वहाँ पर सारे ऐसे लोग थे जो मारते रहते थे। जी। सही। अच्छा, जब ये वाक़या पेश आया तब आप वहाँ थी? नहीं, जामिया में थी। आपकी 4 बहनें हो, बाकी जो हैं वो थी, उनमें से कोई बहन वहाँ? नहीं, वो माँ पापा के पास थी। मतलब किसी ने कुछ होता हुआ नहीं देखा? नहीं। आपने जब मामा वापस गई हैं तब आप मामा के साथ वापस घर गए हो? नहीं, मैं इधर नहीं थी, मैं जामिया में थी। उससे एक दिन पहले उनके साथ थी? नहीं। उससे एक दिन पहले भी साथ नहीं थी? कौन सी बहन है जो साथ थी उस वक्त? कोई भी नहीं बहन। कोई भी साथ नहीं थी। मतलब कि उन्होंने बच्चियों को बाकायदगी से एक प्लानिंग के तहत ये किया उन्होंने कि बच्चों को कहीं भेज दिया, मदरसे भेज दिया जी, वो अपनी लर्निंग कर रही हैं, और पीछे से ये कार्रवाई की है। अच्छा, कभी ऐसा पहले भी देखा हो कि कोई गर्म चीज़ लगा, चिमटा लगा दिया हो, जलाने की कोशिश की हो? नहीं। मारने की कोशिश की? आपके सामने ऐसा कुछ भी आपने देखा? एक मत मारा था चाचू ने। किस तरह से मारा था? थप्पड़ लगाया था मुँह के पर। बस इस तरह मारपीट चलती रहती? जी। और कोई ऐसे आपने कोई और सीन देखा हो? नहीं। आपको कुछ कहते थे? कभी बच्चों को तो नहीं मारा? नहीं, मुझे नहीं मारा कभी। छोटे बच्चों को भी, कभी बहनों को तो नहीं किसी वो को नहीं मारा? आती। अच्छा, मामा से मिली हो जाके? नहीं, अभी नहीं मिली। देखा भी नहीं है? नहीं। क्या बताया अभी सबने? अभी सब ने यही बताया हॉस्पिटल है वो,
जले हैं। अच्छा, कोई लेकर क्यों नहीं गया आपको मिलने के लिए? नहीं, अभी जाना है। अभी जाना है? जी गुस्सा आ रहा है? जी आ रहा है। और छोटी बहनें कहाँ हैं? छोटी बहन मेरे पापा के पास है, उन्होंने बोला था दे दो इनको। पहले वाले पापा के पास? जी वो सही है, वो नहीं कुछ करते उन बच्चों को? नहीं, वो नहीं करते। आप नानों के पास आए हुए हो? जी अभी आई है। आप मामा से मिलने जाओगे? जी जाऊँगी। कैसे देखोगे उनको ऐसे? ये पता नहीं। माँ जी, इन्ना जुल्म हुआ है ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये जिस शुमाइला की दादी हैं और इस कदर सदमे में है वो कि उनसे बात भी नहीं की जा रही। की चाहते हो जालिमा नाल की होना चाहिए? दसो। इंसाफ होना चाहिए। गए हो मिलन ਲਈ बच्ची नो? मैं तो बंद नहीं होता, मैं नहीं गई। शुमाइला की दादी से तो बिल्कुल बात नहीं की जा रही है, वालिदा मौजूद हैं। क्या चाहती हैं, जालिमों के साथ क्या होना चाहिए? बस सानू इंसाफ चाहिए भाई मोहसिन का, सानू इंसाफ चाहिए भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਿਆਮ ਘੁੰਮਣ ਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? शुमाइला नाल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? शुमाइला ने कोई अपने मुंह दसी है सारी गल? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਜਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਕਨ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਲਾਇਆ। ਗੱਲ ਦਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਇਆ? ਉਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਟੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इन लोगों की भी दरख्वास्त है और मैं भी ख़ुसूसन आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आया आपने हॉस्पिटल विज़िट किया, आप इनके घर में आए, इनके घर के हालात देखें, इनका घर देखें कि क्या ये लोग इस काबिल हैं कि ये अपना घर ही चला लें। बहुत बड़ी बात है कि अब ये अपनी बेटी का इलाज तो खैर दूर दूर तक ज़ाहिर है ये बेचारे सोच ही नहीं सकते, इनके तो इतनी मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कैसे करवाएंगे इलाज? और उसके अलावा वो 4-5 बच्चियों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी इनके सर है। इतना बड़ा जुल्म हो गया तो खुदारा आप वहाँ गए हैं, यहाँ पर आके एक बार इनका घर देखें, इन लोगों से मिलें और फिर आप महसूस करें कि इनकी बेटी को ज़िंदा जला दिया गया। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਘਰ ਚਲਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਥਾਣੇ, ਗਏ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਕਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੀਏ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ आन में पहचान ला, लेकिन नामा तो मैनू नहीं पता है कौन कौन ने। मौजूद थे हम कोट लद्दा के पुलिस स्टेशन में, जो कि इस केस से मुतल्लिका थाना है। मौक़िफ़ लेने आए थे जी हम उस दरिंदा शख्स का, इंसान नुमा दरिंदे का, लेकिन यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पर मौजूद इस थाने के SHO फ़र्रुख तुफ़ैल खरल साहब, इनसे बात करना ही बहुत मुश्किल है। इनसे बात करने के लिए, इनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर से कॉल आनी चाहिए और अप्रूवल्स होनी चाहिए। हमें जी अप्रूवल मिली तो तब उन्होंने हमसे बात करना पसंद की और ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मुलज़िम की बात करें तो वो अभी इनका कहना है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जब हमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपको उससे मिलवाएंगे और बात भी हम उसके जो बयानात हैं वो सामने लेकर आएंगे। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है? जो खातून है, जो विक्टिम है, जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान लड़ाई लड़ रही है, उस खातून ने 7 लोगों को नॉमिनेट किया है, जिसमें हमारी अमेजिंग पुलिस, मॉडल पुलिस, वो पुलिस जो है अभी तक अनफॉर्चुनेटली नाकाम है उन नॉमिनेट पर्सनस को अरेस्ट करने में। अभी सिर्फ बकौल इन साहब के कि एक मुलजिम सिर्फ गिरफ़्तार है, जिसको हमने भी देखा कि कौन गिरफ़्तार है, आया वो गिरफ़्तार है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता जी। इस वक्त हमारे साथ शुमाइला के ससुरालियों के मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है?
मुश्ताक अहमद नाम है मेरा। कोई रिश्ता तो नहीं है शुमाइला के शोहर के साथ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोहल्लेदार हैं? जी मोहल्लेदार है। मोहल्लेदार हो या सिर्फ गांव से रहने वाले हो? मोहल्लेदार हूँ। मोहल्लेदार है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ਤੁਸੀਂ सलाम। ਵੀ मोहल्लेदार हो? हाँ जी महल्ले दा। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ? ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਸ਼ਮੈਲਾ ਦਾ, ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਦਖਤਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਨੋਈ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸ਼ਮੈਲਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਨ ਬੋਲਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਤੇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਾਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਉਹ ਗੁਰਨਈ ਦਖਤਰ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖੁਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ नहीं सी है। अच्छा, वो तो सामने वीडियो में खराब है, आप कह रहे घर नहीं है। उस वक्त जिस वक्त ये वाकिया हुआ है उस वक्त बाद में वो आया है। फेंक रहा है पेट्रोल और पेट्रोल नहीं फेंका उसने पानी फेंका उसके ऊपर। अच्छा, पानी फेंका, वो आग नहीं बूझी। और जो इसकी भांजी है ना वो बीच में बोल रही है कि ये आपकी नस्लों को, क्योंकि वो अपना कुछ ज़ाती मामले की वजह से वो इसको बोल रही थी, क्योंकि इनका घरेलू मसला काफ़ी देर से चल रहा है। अच्छा, इस वजह से ये सब जो काम है ये ज़फर इकबाल और नहीं दख्तर का है। अच्छा, मतलब आग किसने लगाई? आग उसने खुद लगाई है। किसने? जफर ने? नहीं, जफर ने नहीं, शमैला बीबी ने। वो कोई किसी अपने आप को आग कैसे लगा? अपने आप को इसलिए उसने लगाई है कि नसीर अहमद इसके साथ नहीं। दसो, कोई लाइटर है किसी के पास या माचिस? आप अपनी उंगली को आग लगा के दिखा दें। नसीर अहमद जो है वो उधर अपनी सिस्टर के घर नहीं गया, ठीक है। इतनी सी बात में शमैला का जो है ना वो। आप बस ये बताएं, आपका जो इंसानी दिमाग है जी, क्या वो मानता है कि आप अपने आप को आग लगा सकते हैं? आप उंगली, मुझे अभी मसला ही नहीं है, मैं उंगली किस लिए जलाऊं? मतलब आपको मसला हो तो आप अपनी उंगली जलाएंगे कि पूरा जिस्म जला लेंगे? मसला जब बनेगा हो सकता है मैंने खुद खुशी करनी हो, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो, मैं अपना जिस्म भी जला सकता हूँ। आ जाएगा इसकी छोटी सी लो देख के ना अच्छा बदमाश डर जाता है। तो एक खातून जिसका बहुत कमजोर सा दिल होता है, खवातीन तो वैसी बड़ी इनोसेंट होती है जितनी मर्जी बदमाश हो, लेकिन आग नहीं लगा सकती खुद को। लगा भी सकती। कितने वाक़े हुए हैं, किसी ने खुदकुशी की है तो वो लड़कियां भी कर रही हैं और लड़के भी कर रहे हैं। अखों वेखिया कि उन्हें अग लाई? जी वेखिया, बिल्कुल। अच्छा, तुसी अखों वेखिया? बिल्कुल। फिर भी नहीं बचाया तुसी? जी बचाया, वो उस वक्त पूरा जल चुकी थी, उस वक्त कैसे किस तरह बचाया तुसी? पानी तुसी कह रहे नसीर ने सुटिया? पानी नसीर ने पहले जब वो कमरे में गई है ना तो नसीर ने बाहर से तारे खींची हैं मीटर की। उसे नहीं पता था कि कमरे में पेट्रोल भी है। अच्छा, जब वो कमरे से आग लगा के बाहर निकली है फिर उस वक्त नसीर ने पानी फेंका है। नसीर नाल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ताल्लुक है वैसे? सही दसो। मेरा नसीर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं ਤੁਹਾਡਾ? नहीं, बस गांव के। गांव के हैं। सही हो गया। अभी यहाँ पर तो पूरा चैप्टर ही उलट गया है कि जी इनका कहना ये है कि कोई भी शख्स खुद ही आग लगा सकता है। मतलब यहाँ पर तो मैं कह रही हूँ कि मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है कि आप सब ने एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि आप पागल हो जाएं, गुस्से से आग बगोला हो जाए। आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी एक फिंगर है ना, इस पे आपने ब्लेड से कट लगा देना है या आग लगा के देखनी है। तो फिर मैं देखना चाहती हूँ कि गुस्से में इंसान खुद को आग लगा लेता है कि नहीं। जी लगा सकता है। आपने उस खातून की शक्ल देखी है, उसकी हालत देखी है? मैं तो बर्न सेंटर में भी उसके पीछे गया हूँ। देखा आपने? जी देखा है। आपको क्या आपने महसूस किया उसे देख के? वो तो उसकी हालत बहुत ज़मीर ने क्या कहा कि मैं जलता हुआ, मुझे पूरी स्टोरी पता थी कि मोहल्ले में लड़ाई चल रही है, इसने आग लगा ली है, पेट्रोल उसने ला के दिया, तारे वो खींच रहा है, फिर भी नहीं बचाया। अल्लाह को तो जवाब देना है। देखो बचा रहे थे, उसके पास टर्मा सेंटर भी मैं ही ले गया हूँ उसको, ठीक है। नसीर अहमद मेरे साथ था, वो खुद ले गए हैं उधर टर्मा सेंटर में। जितना परेशान नसीर अहमद है मेरे ख्याल में पेट्रोल छिड़कते देखा है खुद पे? जी हमने नहीं देखा। तीली लगाते हुए देखा है? वो कमरे में आग लगा के निकली है। कमरे में आग लगा के निकली है? अपने कमरे में जहाँ अपने कमरे में, और खुद को भी आग लग गई? जी उसको कमरे को नहीं लगाई, खुद को कमरे के अंदर आग लगाई। खुद को कमरे के अंदर आग लगाई, राइट।